So the GATE exam is finally over, and for few branches, and there will be basically 3 types of students based on the performance in the GATE exam. The first one is जिन लोगों का performance बहुत ही अच्छा हुआ है and they are expecting a very good rank, and the second one is जिनका performance was average and they are expecting not that good rank but not that bad rank also, ठीक है. And the third group of students जिनका performance बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है and they are not expecting any better performance in the GATE exam. So this video is for type 2 and type 3 students, ठीक है. Those students whose performance is just average, ठीक है. मतलब ऐसा नहीं कि वो टॉप 100 या फिर टॉप 200 में आएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि वो टॉप 10,000 के बाहर है या फिर टॉप 5,000 के बाहर है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है. तो फॉर दोज माई वन मैसेज वुड बी डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन. सिंगल एक मैसेज है कि प्रिपरेशन अभी स्टॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हाँ, एग्जाम हो गया, आप थोड़ा प्रिपरेशन को रिड्यूस कर सकते हो, थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हो, क्योंकि इतना दिन आपने मेहनत किया तो थोड़ा आप रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, बट नॉट दैट मच कि आप पूरा प्रिपरेशन ही बंद कर दो, ठीक है. ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आखिरी जो 3-4 महीने आने वाला है, दीज आर द मोस्ट क्रूशियल पीरियड फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका रैंक अच्छा हुआ है. उनके पास कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे वाले 3-4 महीने में क्या हो रहा है. वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे एंड दे विल बी गेटिंग अ वेरी गुड कॉलेज और वेरी गुड PSU. लेकिन आप लोग जो स्टूडेंट हो जिनका परफॉर्मेंस मीडियम लेवल पे हुआ है या फिर नॉट सो गुड लेवल पे हुआ है, उनके लिए ये बाकी 3-4 मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 3-4 मंथ में आपको ISRO एग्जाम आएगा, बार्क एग्जाम आएगा. अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो IIIT हैदराबाद का एग्जाम आएगा, IIIT दिल्ली का एग्जाम आएगा, ISI कलकत्ता की एग्जाम आएगा, बिट्स का एग्जाम आएगा. इसके साथ साथ अगर आपकी परफॉर्मेंस मतलब आप टॉप 1000 रैंक पे भी हो तो बहुत ऐसे चांसेस है कि IIT में जो MS कोर्स है या फिर कुछ IIT में MTech कोर्स में भी आप शॉर्ट लिस्टिंग हो सकते हो, या फिर IIT में जो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है जिनका डिमांड बहुत ही ज़्यादा हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ सिचुएशन, उसी कोर्स में आप सिलेक्ट हो सकते हो. बट द सिलेक्शन क्राइटेरिया इज नॉट जस्ट गेटिंग सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द गेट स्कोर. उसके लिए आपको रिटन टेस्ट देना होगा एंड उसके साथ साथ आपको इंटरव्यू भी देना होगा. सो दिस इज ऑप्शन लाइक कुछ जगह पे रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू होता है, कुछ जगह पे सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होता है. तो दैट डिपेंड्स ऑन द IIT स्पेसिफिक IITs और IISc. तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन लेना जरूरी है. And also another good thing for your preparation as well as practicing questions, PrepLadder is going to help you a lot, because PrepLadder is giving you a free access to few of the subjects in all the different branches. For GATE Computer Science, GATE Electronics, GATE Electrical, there will be few of the subjects that will be absolutely free, as well as you get to access of the question bank, their original question banks that is designed by the most trusted faculties in all over India, as well as you get the prep test. So this type of test will also be helpful for your preparation in ISRO or BARC exam, or maybe the exams for IIIT Hyderabad and the IIT's written test. So these questions are curated by the GATE Dream Team from the PrepLadder official itself. For GATE Computer Science, you will get compiler design for absolutely free until 17th of February from Malesham sir, who is very renowned in this GATE industry, and he has produced a lot of rankers in the past few years. So that's why his highly researched and engaging content will definitely help you to get the crystal clear idea about each and every subjects. And also apart from that, you get to practice a lot of questions curated by the PrepLadder faculties. You get question bank, you get the prep test, as well as you get your performance evaluation once you attempt to any of the tests. And all the tests are actually free until 17th of February. So just download the app and use my code Manish10 to get access to all those things in absolutely free of cost. अगर आप अभी भी determined हो कि जो हो गया गेट में, अगर मेरा उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी हुआ, क्योंकि देखो टॉप 100 में सिर्फ 100 लोग ही आएंगे, टॉप 200 में सिर्फ 200 लोग ही आएंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं. तो बाकी लोगों का क्या होगा? क्योंकि फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन से कि वो बाकी लोग अगर वो चाहते हैं तो उसी टॉप 100 या फिर टॉप 200 के साथ ज्वाइन कर सकते हैं IIT में या फिर ISc में, या फिर कुछ जगह पे बार्क और ISRO क्रैक करके भी वो अच्छी रैंक निकल सकते हैं. मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जिनका गेट कंप्यूटर साइंस में रैंक आया 800 to 900 या फिर 1000 से भी थोड़ा ऊपर नीचे रैंक आया. उनका बार्क एग्जाम एंड ISRO एग्जाम बहुत ही अच्छा गया. क्यों? बिकॉज आफ्टर द गेट दे डिड नॉट स्टॉप देयर प्रिपरेशन. देखो खराब सबको लगता है, ठीक है, अगर एक एग्जाम आपकी इतना मेहनत की वजह से एक एग्जाम खराब हो गया तो सबके डिमोटिवेशन आते हैं, एंड दिस इज क्वाइट नॉर्मल.
बट अगर आप उसको दिमाग में रख के ऐसे ही पूरा दिन फिल करोगे कि यार मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप डिटरमाइंड हो कि मेरे को कुछ अच्छी चीज अचीव करना है, तो देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स। गेट इज नॉट जस्ट द ओनली ऑप्शन। बहुत सारे एग्जाम्स है जिसके आप क्रैक करके आगे बढ़ सकते हो, बट फॉर दैट आपको एक प्रॉपर प्रिपरेशन लेना जरूरी है। तो दैट्स वाई मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हर दिन छोटा छोटा करके 1 से 2 घंटे भी अगर आप टाइम निकल सकते हो, उसी टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन करते जाओ। एंड उसका जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जैसे बार्क का होता है, इसरो का होता है, IIIT हैदराबाद का कुछ सैम्पल क्वेश्चन है, एंड ऑल द क्वेश्चंस विल बी रियली इजी। ठीक है, एज कम्पेयर टू गेट क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान आएगा। दैट इज द बिगेस्ट चांस ऑफ यू कि आपके अगर गेट की प्रिपरेशन अच्छा है तो आपके लिए एग्जाम बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। IIIT हैदराबाद का एग्जाम बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। इसरो का एग्जाम की क्वेश्चन भी बहुत आसान होता है। इसरो का टाइम लिमिट एक फैक्टर होता है, लेकिन क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बहुत आसान होता है। बार्क में थोड़ा समटाइम्स तो मतलब मीडियम टू हार्ड लेवल की क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है आपकी ISI कैलकाटा की एग्जाम, उसके बाद है बिट्स का एग्जाम, उसके बाद IIT का रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। एंड वहाँ पे भी रिटन टेस्ट काफ़ी अच्छी एंड काफ़ी सिंपल होता है। एंड इंटरव्यू के लिए शायद मैं कोई नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन एट IIT स्पेसिफिकली इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि वो लोग आपको सिंपल बेसिक थिंग्स पूछेंगे एंड आपको वो जवाब देने के लिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना है। बट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल टू डू दैट, क्योंकि उनके पास कोचिंग सेंटर की कुछ नोट पढ़ के चले जाता है, या फिर कुछ ऐसे हैंड रिटन नोट्स, या फिर कुछ ऐसे छोटा जो रिविजन नोट्स है वो पढ़ के चले जाता है। बट दैट इज नॉट द प्रोफेसर्स वांट इन द इंटरव्यू। प्रोफेसर्स आपको चेक करेंगे कि आपको सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। तो इसीलिए शायद मैं नेक्स्ट कोई एक वीडियो पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, डिटेल एक रोड मैप बता दूंगा कि क्या क्या चीज आपको प्रिपेयर करना है फॉर द इंटरव्यू इन IIT और IISc। एंड गेट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आई नो कि आपकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो दूसरे बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको थोड़ा डिमोटिवेशन फील हो सकता है, बट फिर भी आपको ट्राई करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अगर ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर से ट्राई करो, फिर से प्रैक्टिस करने का, क्योंकि लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर गेटिंग रिपीटेड इन इसरो एग्जाम्स एज वेल एज इन बार्क एग्जाम, एज वेल एज इन IIT का जो आपकी रिटन टेस्ट होगा उसमें भी रिपीटेशन हो सकते हैं। एंड IIIT हैदराबाद, ISI कैलकाटा, बिट्स, ऐसे सारी जगह पे रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा खुद के एक्सपीरियंस से बात करूँ, एंड मैंने देखा था, मैंने जब IIT कानपुर में भी रिटन टेस्ट दिया था, लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर एग्जैक्टली सिमिलर, कुछ थोड़ा डेटा चेंज करके या फिर थोड़ा लॉजिक चेंज करके दे दिया था, बट द क्वेश्चंस वर एग्जैक्टली सिमिलर इन वन ऑफ द पास्ट गेट क्वेश्चंस। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आपने अगर ठीक से नहीं प्रैक्टिस किया तो फिर भी आप थोड़ा टाइम निकल के एक दिन में थोड़ा टाइम निकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड हर दिन एक सब्जेक्ट का आधा आप कंप्लीट करो, वो भी काफ़ी है, जस्ट रिवाइज करो। ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। डिमोटिवेशन सबको आता है अगर परफॉर्मेंस अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी इन 3-4 महीने में कुछ अच्छी चीज़ अचीव करने के लिए आपको ये चीज़ फॉलो करना होगा। एंड आई बेट यू, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जिनका गेट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं भी हुआ, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे एक जगह पे चला गया, बिकॉज दे हैव यूटिलाइज दिस लास्ट 3 to 4 months। तो इसीलिए ये ड्यूरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लोग ये टाइप 2 एंड टाइप 3 कैटेगरी स्टूडेंट पे हो। तो बस आप प्रिपरेशन करते रहो एंड मैं वीडियो लाते रहूँगा ऐसे हर एक चीज़ के बारे में कि कैसे आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको रिटन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, सारी चीज़ के लिए मैं वीडियो लाते रहूँगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।